وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سلطان داور شاخہ محشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل تعظیم و تسلیم بزرگوں دوستو، میری اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اکبر خلیفہ بلاحص خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ فناخ الرسول حضور سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ صداقت میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے. انشاءاللہ العزیز میرے بعد ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین برادر محتشم شہباز میدان کتابت حضرت علامہ شہباز احمد کی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے. میں ایز اے میزبان یوں سمجھ لیں کہ علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے آپ کو اس لیے خطاب سننے کے لیے تیار کرنے کے لیے اور بارگاہ صداقت میں چند لمحے اپنی حاضری لگوانے کے لیے اپنے بھائی ہماری اس مسجد کے امام استاد الحفاظ جناب حافظ عبدالقدیر صاحب کے حکم پر چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. پہلی بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم اس بات پر جتنا بھی اللہ کریم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے پیدا فرمایا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نام سنیں تو ہماری پیشانی پر بل پڑ جائیں، یا ہم حضور کی اہل بیت کی محبت کا دم بھریں لیکن حضور کے اصحاب کا نام آئے تو ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہوا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں. ہم پہ یہ خصوصی کرم ہے ہمارے رب کریم کا کہ حضور کی نالین پاک کا صدقہ اور ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاف جنہوں نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا جو حضور کی بارگاہ تک متصل ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کسی نے گڑا نہیں اپنے طور پہ اپنے ٹائم،
بلکہ جو عین قرآن و حدیث کا مغز ہے، جو عین مزاج قرآن ہے اور جو مزاج سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یاد رکھیں، ہم افراط و تفریط کا شکار ایک پلڑے میں اس لیے نہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے نہ اہل بیت کی وجہ سے حضور کو مانا، نہ اصحاب کی وجہ سے حضور کو مانا، بلکہ الحمدللہ ہم نے اصحاب کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ ہم حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور حضور کے اصحاب کی غلامی کا دم بھی اسی لیے بھرتے ہیں کہ یہ حضور کے اصحاب ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت، فیض رسالت، یہ اس قدر محدود کر دینا کہ صرف گھر والے ہی حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ میرے حضور سے تو پتھروں نے بھی فیض پایا ہے، میرے حضور کے کرم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پتھر بھی حاضر ہو تو انہیں بھی حضور کا کلمہ نصیب ہو، اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس شخص نے محبت کی ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو تک لیا، اللہ نے تب تک اسے موت نہیں عطا کی جب تک حضور کی غلامی نصیب نہیں کی، جب تک اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں نصیب ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں تو جانور آئے، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی خالی نہیں جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو پتھر بھی خالی نہیں جاتے، بلکہ حضور کا قدوم میمنت احد پہاڑ پر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور حضور کی رحمت کا حصہ اسے یوں ملتا ہے کہ آج سخت سے سخت ترین چیز کا جب کوئی بیان کرنے لگے تو مثال پتھر کے ساتھ، تشبیہ پتھر کے ساتھ دیتے ہیں، جو حقیقتاً پتھر ہے، اس کے سینے میں بھی اللہ کریم نے محبت رسول کو معجزہ فرما دیا، اور حضور خود بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ، یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میرے حضور کا کرم دیکھیں، حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا پتا چلا جو حضور سے محبت کرے، حضور اس کی محبت کو ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی، جنہیں حضور کا ظاہری زمانہ نصیب ہوا، جنہیں حضور کی مجلس نصیب ہوئی، جنہیں حضور کی محفل نصیب ہوئی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور ہر صفت کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا حبیب آنے والی ہر گھڑی آپ کی ہر صفت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، درجات میں، برکات میں، معجزات میں، ہر چیز میں آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے بہتری کا لمحہ ہوگا۔ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حضور کی حیات پاک بھی پہلے سے بدرجہ اولا اللہ کریم نے حضور کو حیات عطا فرمائی ہے۔ صرف علماء کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ چراغ نبوت پہلے ظاہری طور پہ روشن تھا کہ جس کا جی چاہتا وہ آ کے زیارت کرتا، آج بھی چراغ نبوت اس سے بہتر طور پہ اسی طرح روشن ہے اور ہر چیز کو روشن فرما سکتا ہے، بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ آج بھی جو نصیب والے ہیں انہیں حضور کی زیارت اسی طرح نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جن کے امام کی آج ہم بات کرنے کے لیے اور جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، خلیفہ بلا فخر، خلیفہ اول، افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل البشر بالتحقیق امیر المومنین، خلیفۃ الرسول۔ اور علماء کہتے ہیں کہ
हकीकी तौर पर इस उम्मत में जो फना फिर रसूल के पहले मिस्दाक है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आपका जिक्र पाक करने के लिए हम जमा हुए और अल्लामा साहब से हम आपकी सीरत पाक के हवाले से, आपके जिक्र पाक के हवाले से सुनेंगे, लेकिन ये एक तो बुनियादी गुजारिशात में आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। एक तो ये बात ज़हन नशीं रखें कि हम हुजूर के असहाब को क्यों मानते हैं, इसलिए कि ये हुजूर के असहाब हैं, ये हुजूर के असहाब हैं। और हुजूर फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं ये जो मेरे घर से, मेरे हुजरा पाक से लेकर मेरे मिंबर पाक तक जो मेरी गुजरगाह है, जो मेरे कदमों के साथ मच होने वाली जमीन का टुकड़ा है, फरमाया ये जन्नत के बागों में से बाग है और ऐने जन्नत है। क्यों? इसलिए कि हुजूर के कदम चूमने का उस जमीन को शरफ हासिल हुआ। अगर जमीन का टुकड़ा हुजूर के कदम चूमे वो इतनी अफजल हो जाए कि वो जन्नत का टुकड़ा बन जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत और आलम, उनकी शान का आलम क्या होगा जिन्हें हुजूर ने इस करम से, इस रहमत से, इस एजाज से नवाज रखा है, इस शरफ से नवाज रखा है कि वो जिंदगी में भी हुजूर के साथ रहे और बाद वफात भी, दरवाजे मौत से गुजरने के बाद भी, बाद विसाल भी उन्हें वसाले हकीकी हुजूर का विसाले पाक। उलमा कहते हैं एक लम्हे के लिए मोमिन कब्र में हुजूर की ज़ियारत के लिए जाता है, उसे गुस्ल भी इसीलिए दिया जाता है कि उसे हुजूर की ज़ियारत होनी है। नया लिबास वो कफन भी इसीलिए जेब किया जाता है कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान का आलम क्या होगा जो तब से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक और हुजूर के फरमान के मुताबिक जब हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र नूर से निकलूंगा, उस वक्त भी मेरे दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं तरफ फारूक आजम होंगे और हुजूर फरमाते हैं हाथों में हाथ डालकर इसी तरह हम मैदान माशर में भी जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत रसूल में हमारे मुक्तदा हैं, हमारे इमाम हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमारे इमाम और मुक्तदा हैं। वो हुजूर के सीना नूर पर नाजिल होने वाली किताब नूर के हवाले से, कुरान मजीद का कारी होने के हवाले से, कुरान करीम का आमिल होने के हवाले से हमारे मुक्तदा और इमाम है, हमारे पेशरो हैं। वो ईमान के हवाले से हमारे पेशरो हैं। अगर कोई बदनसीब आपकी ज़ाते पाक पर उंगली उठाए, अंगूठ नुमाई करे, वो अगर जुबान दराजी करने की कोशिश करे तो याद रख लें उसके बेईमान होने के लिए यही बात काफी है कि जिनके सदके किसी को ईमान नसीब हो, अगर उनके ईमान पे शक किया जाए तो 14 सदियां बाद पैदा होने वाला मोमिन कैसे हो सकता है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है। जो ईमान का मॉडल है, जो ईमान का नमूना है, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और ज़ाते खुदाबंदी ने भी हुजूर की उम्मत को ईमान का नमूना बना के जिन्हें पेश किया, जिनकी अजमत का हाल ये कि वो बदरी भी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बद्र में शामिल हुआ उसकी शान का हाल ये है, फरमाया इसके बाद आने वाला कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। और जमाते सहाबा में इस पे कलाम होता कि फलां बदरी सहाबी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस पे कलाम किया करते और इस पे फख्र किया करते। हुजूर के सहाबा बाद में सारी जिंदगी अपनी अपनी मजालिस में इस चीज को बयान किया करते। सहाबा अपने सीने पे हाथ रख के ये कहा करते, फिर ताबईन अपने सीने पे हाथ रख के कहा करते कि मेरा वालिद हुजूर के बदरी सहाबा में शामिल, मेरा दादा हुजूर के बदरी सहाबा में शामिल। मैं उनकी अजमत को क्यों ना सलाम करूं जो सिर्फ बदरी सहाबा में शामिल नहीं बल्कि उलमा कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुहाफिज होने का एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को मिला, पहला मोमिन होने का एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को मिला, इस्लाम का पहला खतीब होने का एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को मिला, कुरान का पहला कारी होने का एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को मिला, कुरान का पहले जामे होने का एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को मिला और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का पहला इमाम होने का एजाज भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मिला। हुजूर के मुसल्ले का पहला वारिस होने का एजाज भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मिला। हुजूर के मिंबर का
पहला खतीब होने का एजाज भी सैयदना सिद्दीक अकबर को मिला। और फरमाया ये शान सिर्फ आयशा के बाबा सैयदना सिद्दीक अकबर की है कि हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ए अली जाओ मेरे अबू बकर को कह दो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर मेरी उम्मत की इमामत फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्साबिकून अल-अव्वलून के पहले मुस्तक इस आया कुरानिया की के पहले मिस्दाक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद आकिल बालिग मर्दों में पहले मोमिन और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का पहला समर, दरख्ते नबुव्वत का, शजरे रिसालत का पहला समर, पहला फल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहले दिन जब हाजिर हुए, जिस दिन इस्लाम कबूल किया, 40,000 दिरहम के मालिक हैं। पहले लम्हे जब ही इस्लाम कबूल किया हुजूर के कदमों पर 40,000 दिरहम, आज से 1436 वर्ष तकरीबन, इससे भी ज्यादा अरसा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, आका आज के बाद से अबू बकर की जान भी आपकी, माल भी आपका, जैसे आप हुक्म फरमाए वैसे इस्तेमाल फरमा लिया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वतन छोड़ा, हुजूर के कदमों पर औलाद को निसार किया, हुजूर की बारगाह में जान को पेश किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना कबीला, कुर्बा, बरादरी हर चीज कुर्बान की। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजमत, ये शान इस तरह अता फरमाई, इन सारी चीजों को कबूल फरमा के इस तरह आपने शान अता फरमाई कि आज भी पहलुए मुस्तफा में आराम फरमा। सबल गुंबद दे अंदर जो सजदी सी था कमली वाले दे यारा दे कम आका करीम जिसके लिए हुजूर ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शिफाअती, हुजूर के जिस रौदा नूर को कोई एक नजर देखे वो जन्नती ठहरे कि हुजूर की शिफात उसे नसीब होगी, वाजिब हो गई। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करम कर दिया जो उस रौदा पाक के साए तले हुजूर के कदमों में, हुजूर के पहलू में आराम फरमाए, उनकी अजमत का आलम क्या होगा। जिनके हुजूर की रहमतों का तोफैल, हुजूर के कदमों का सदका, जिन्हें इस एजाज से रब ने नवाजा, आज कोई बदनसीब बदबख्त अपनी कब्र स्याह करने के लिए, अपने ईमान से हाथ धोने के लिए जुबान दराजी करे तो उनकी अजमत में क्या फर्क पड़ेगा कि जिनकी कब्र नूर पर 70,000 फरिश्ता सुबह और 70,000 फरिश्ता शाम को सलामी के लिए हाजिर होता है। हुजूर की रहमत का सदका उन्हें भी ये एजाज नसीब है हुजूर के साथ। और हुजूर की रहमतों के तोफैल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गुलाम जब रौदा पाक पर जाता है, हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करता है, तब तक उसकी सलामी यूं समझ लें कि मुकम्मल नहीं होती जब तक इन बारगाहों में सलाम पेश नहीं कर देता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इन्हें नवाज रखा है। मेरी सरकार ने जिन्हें ये एजाज अता किया कि आप तशरीफ फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मैदान हश्र में हर जन्नती, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हुजूर फरमाते हैं कि हर जन्नती किसी एक दरवाजे से गुजरेगा कि एक वक्त में एक बंदा एक ही दरवाजे से गुजर सकता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में एक ही शख्स ऐसा होगा कि जो एक दरवाजे से गुजरने लगेगा तो जन्नत के 8 दरवाजे ये ख्वाहिश करेंगे क्या गुजरने वाले काश तू मुझसे गुजर के जन्नत में जाता। अर्ज किया हुजूर इतनी बुलंद बख्ती का मालिक, इतनी इज्जत वाला, इतनी शान वाला कौन होगा। हुजूर ने फरमाया वो मेरा अबू बकर होगा कि जो जन्नत के एक दरवाजे से गुजरने लगे तो जन्नती दरवाजे की तमन्ना करें, ये आरज़ू करें, ये जुस्तजू करें कि अबू बकर काश तू मुझसे गुजर के जाए, काश तू मुझसे गुजर के जाए। इस शान के मालिक हुजूर ने सारे सहाबा हुजूर की शान वाले फरमाया ला तमस्सुन्नार मर्रानी औरा मर्रानी, जिसने एक नजर मेरे चेहरे पर नूर को देख लिया, हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नती हो गया, उसको देखने वाला भी जन्नती। लेकिन उनकी शान का आलम क्या होगा जिन्होंने जिंदगी में एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, 4 बार नहीं देखा,
बल्कि ऐसा देखा कि ऐसा उम्मत में कोई भी नहीं देख सका, ऐसा देखा कि जैसा उन जैसा कोई भी नहीं देख सका। और सैयदना फारूक आजम जैसे सहाबा भी रश किया करते और आरज़ू करते, कहते, अर्ज करते कि अबू बकर मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, मेरी जिंदगी के सारे इज्जतों के हवाले ले लो, बड़ाई के सारे हवाले ले लो, जिसमें जिहाद भी है, इबादत भी है, रियाजत भी है, मुजादा भी है, सारा कुछ है, सारा कुछ ले लो, गारे सौर की 3 रातों में से एक मुझे दे दो। उनकी अजमत का आलम क्या है कि उम्मुल मोमिनीन हुजूर सज्जिदा तज्जिबा ताहिरा, मोमिनों की माँ हुजूर सज्जिदा आयशा पाक हुजूर की बारीगाह में अर्ज करें कि आका आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? हुजूर फरमाए हाँ मेरे उमर की नेकियां। अब तफसीलात में मैं नहीं जाता कि सज्जिदा आयशा पाक के पूछने में क्या क्या हिकमत पिनहा है, हुजूर के इरशाद फरमाने में क्या क्या शाने हैं। एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर ने फरमाया हाँ मेरे उमर की नेकियां। फरमाया आयशा चुप हो गई हो, रुक क्यों गई हो इस बात पर? अर्ज किया हुजूर मेरे बाबा की नेकियां। हुजूर ने फरमाया उमर की सारी उमर की नेकियां एक तरफ, मेरे अबू बकर की वो गार की 3 में से एक रात एक तरफ। उलमा कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में क्या किया था कि रब का कुरान भी कह उठा सानियत नहीं इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वो भी नहीं और भी नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई दरमियान में चीज हाइल ना होने दी। फरमाया हबीब जिस तरह आपको रब के कुरान की शान हासिल है, आपके सदके हमने आपके सिद्दीक को भी वही अता फरमाया। इन्नल्लाह मअना, अल्लाह आप दोनों के साथ है। और गैरियत निकाल दी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने वहां किया क्या था? किया यही अमल किया था, यही काम था, यही इबादत थी, वो जिसका इजहार हुजूर की बारगाह में भी किया। अन नज़र इला वजह रसूलुल्लाह कि हबीबी या रसूलुल्लाह मेरी तमन्नाओं में से एक तमन्ना ये है कि आपका चेहरा पाक हो। अन नज़र इला वजह रसूलुल्लाह, मेरी नजर हो, आपका चेहरा पाक हो, मैं देखता रहूं। आप फरमाते हैं कि गारे सौर में अल्लाह ने वो मौका मुझे अता किया, जान भी हुजूर की बारगाह में पेश कर दी कि साहब डस रहा है, बार बार डस रहा है, डंग पे डंग मार रहा है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटा रहे, इसीलिए कि जान भी हुजूर की बारगाह में हुजूर के आराम पे कुर्बान कर रहे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शान अता फरमा दी, वो मुकाम अता कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मोहब्बतों का वो कोहे हमालिया बना दिया कि हुजूर की बारगाह से जिसे मिलता है वो हुजूर की निगाह से, हुजूर के करम से, हुजूर के फजल से मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर हुजूर नवाजने के लिए तशरीफ लाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम नवाजी फरमाई। अभी दरवाजे पे पूरी दस्तक भी नहीं हुई तो दरवाजा खोल दिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अभी तो पूरी दस्तक भी नहीं दी, तूने ऐसे लगा जैसे पहले ही दरवाजे पे खड़े थे। उलमा ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की हुजूर आज की रात नहीं, सिर्फ आज की रात की बात नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 6 माह पहले आपने ये फरमाया था कि अबू बकर अल्लाह के एक बंदे को अनकरीब रब का हुक्म आने वाला है और वो अपने रफीक को, अपने साथी को साथ लेकर हिजरत फरमा जाएंगे। मैं तो तब से लेकर सारी रात आज तक दरवाजे पे खड़े होकर इसलिए गुजार देता हूं, ऐसा ना हो कि मेरे हुजूर ये करम नवाजी मुझ पे फरमाए और हुजूर को इंतजार फरमाना पड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का ये हाल था। इसीलिए तो उलमा कहते हैं कि फना फिर रसूल के पहले मिस्ताक हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब जो भी उम्मत में फना फिर रसूल के मुकाम पे पहुंचेगा वो इन्हीं के कदमों की खैरात लेकर पहुंचेगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें इस अजमत से, इस शान से नवाजा कि आखिरी जब वक्त करीब आया तो अपनी औलाद को और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक भी
आपके करीब हैं, तो आपने इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया जब मेरी रूह कब्ज़ शरीर से परवाज़ कर जाए तो मेरी चारपाई उठाना और हुजूर की बारगाह में ले जाना। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक़ीदा है। आज हुजूर के मिलाद के जुलूस को शिरक कहने वाले यौमे सिद्दीक़ अकबर पर रैलियां निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जायज़ है, हम तो इस अक़ीदे के हामिल हैं, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए, लेकिन आपकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हो, आपके अकायद भी तो अपनाओ, कभी ये भी तो बयान किया करो, उम्मत को ये भी तो बताओ कि जिनकी शान की रैली निकाल रहे हो, जिनकी बारगाह में खराज तहसीन पेश कर रहे हो, उनका अक़ीदा क्या है? उनका अक़ीदा ये है, वो फरमाते हैं कि मेरी चारपाई उठा के भी हुजूर की बारगाह में ले जाना और जाके मेरा सलाम पेश करना और ये अर्ज करना कि आका गार के साथी दीदार के साथी बनना चाहते हैं, अगर इजाजत मिले तो हुजूर के पहलू में, हुजूर के कदमों में दफन करना, नहीं तो मदीना पाक का वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ वहां दफन कर देना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल, हुजूर के जानशीन अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक आपकी बाद विसाल चारपाई को उठाया गया, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। जब ये अर्ज किया गया तो कब्र नबी से रौज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज आई और सुनने वाले 15वीं सदी के नहीं जिन्हें कोई मुगालता लग जाए, बल्कि वही सहाबा जो 23 वर्ष हुजूर की आवाज सुनते रहे, वही मौले मुर्तजा जो गोदे मुस्तफा में परवान चढ़े, वही हुजूर के सहाबा और हुजूर के अहले बैत के अफराद जो सारी जिंदगी जिनकी समाते मानूस थी हुजूर की आवाज मुबारक से, जो हुजूर की आवाज को भी पहचानते, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर वक्त मुखातिब भी रहते, हुजूर की बारगाह में हाजिर भी रहते, उन्होंने अपने कानों से ये सुना और उम्मत को बताया। वो कहते हैं जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सलाम हमने पेश किया, कब्र नबी से आवाज आई, उदखिलुल हबीब इलल हबीब, उसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मेरे हबीब को मेरे साथ मिला दिया जाए, हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उन्हें कबूल फरमाया। वो वहां दफन है तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर के करम से दफन, हुजूर की इजाजत से दफन, हुजूर की रहमत के सदके दफन है। अल्लाह करीम ने उन्हें ये शाने, ये मौका अता किया कि आज भी उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि 15 सदियों का फासिला है देखने में, कहने में, लेकिन आज भी जो इनकी मोहब्बत लेकर सरकार की बारगाह में जाए, इनकी मोहब्बत का सदका सरकार उसकी मोहब्बत को कबूल फरमाते हैं, उसकी मोहब्बत को। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मदीना पाक में मैं हाजिर था अपने शह कामिल हुजूर क़िबला आलम के साथ, तो वहाँ हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग वहाँ हाजिरी के लिए हाजिर हुए मदीना पाक। तो मुझे दोस्तों ने बताया, हम मुलाकात के लिए उनके पास गए होटल में, तो मैंने उनसे ये अर्ज किया कि कोई नसीहत फरमाएं। वो कहने लगे कि नसीहत यही है कि आप मदीना पाक में हैं, किसी लम्हा, किसी लहजा अपने दिल से ये ख्याल जाने ना पाए कि हम हुजूर के शहर में हाजिर हैं, कभी भी अदब का दामन न छोड़ें। और वो कहते हैं मेरे अपने हाल की बात यह है कि मैं अपने आप को इस कदर गुनाहगार समझता हूँ कि मैं सरकार की जालियों के सामने, हुजूर के कदमैन शरीफैन में जालियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। किसी बंदे की ओट में खड़े होकर आंखें बंद करके सरकार की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वास्ता पेश करके सलाम अर्ज करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका वास्ता पेश करके सलाम किया हो, हुजूर ने करम फरमा के जवाब ना आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हुजूर की बारगाह में हुजूरी कबूलियत और शान का हाल ये है कि आज भी कोई भी बंदा इनका सदका उनकी बारगाह में पेश करे तो हुजूर जरूर करम फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर जितना हम नादा हों, इस बात पर जितना फख्र करें वो कम है कि अल्लाह करीम ने हमें हुजूर की अहले बैत की भी गुलामी नसीब फरमाई है, हुजूर के असहाब की नौकरी भी अता फरमाई है। अल्लाह करीम हमें इसी अकीदे के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता करे और कब्र और हश्र में उठे तो इसी अकीदे के साथ कि हम हुजूर के दर वालों के भी गुलाम हों, हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हों। वाह